Hello everyone. In the last lecture we studied about serializability. So why serializability concept was introduced? It was introduced for the transactions. Like we have studied about transaction processing, we were seeing that multiple transactions were actually operating concurrently. Because of these concurrent transactions, our system was almost left in inconsistent state. So serializability concept came for making our database consistent. So we studied about what is serial schedule, what is non-serial schedule. Non-serial schedule can also be said as parallel schedule. Then we studied about its two types. What were its two types? Its two types were conflict serializability and the second is view serializability. We have studied about conflict serializability, conflict equivalent. Now we are moving towards our second type, that is view serializability. So like see, I have an example here so that we can easily understand the concept of view serializability. We have three transactions T1, T2 and T3. I can say that this is a schedule S which has three transactions T1, T2 and T3. There are some operations like T1 is having operation read A and write A. T2 has an operation write A. T3 has an operation write A. So in the timestamps we can see that we were pursuing towards T1 to T2, T2 to T1 and then T1 to T3. So we can see that this is not a serial schedule. What this is a parallel schedule, or we can say that non-serial schedule. So we what we were doing in conflict serializability, we were making our non-serial schedule to a serial schedule. Then we were creating a precedence graph. See, I can also create a precedence graph by using these transactions. How I can create the precedence graph? As I told to you in the earlier class, so for creating a precedence graph, we need to check if any conflict are present in other transactions. We will make a directed edge for that transactions to the transaction which has that conflict in it. Like see, when firstly we will execute this array. When I'm going towards this array, it can have the conflict of write. That means read A can have a conflict of write A. See, if T2 has a write A conflict, yes we have. So we can create an edge from T1 to T2. So there is an edge from T1 to T2. And then see, is there any other WA present in any another transactions? Yes, T3 also has WA. So we can also create an edge from T1 to T3. So for this read A, we had two conflicts WA. There is a edge towards T1 to T2 and T1 to T3 because of that conflicts. Now we are done with this one. Okay, so what will be the next execution of operation? This operation will execute next. This W can have how many conflicts? This W can have conflicts of read A and WA. Okay, so firstly we will check in T1. Do we have any conflict here? Yes, we have one conflict, that is WA. So I can create an edge from T2 to T1. Okay, so then I'll check in the transaction T3. Does this have any conflict? Yes, it has WA. So I can create an edge from T2 to T3. So this is T2 to T3. We have traversed this. Then we have already checked for this one. Then what the third operation will do? This is my third operation. What is write A? It can have two conflicts. What these two conflicts can have? Either read A and or write A. Does this have read A or write A? No, we don't have it. Does this have? Yes, we are left with this WA because we have already traversed up to this. So we are going to check the rest of operations which are present below this line. So this is an operation which is left behind. What this operation is? This operation is WA. So I can create an edge from this T1 to T3. We have already created this and this edge for this transaction, for this operation. So
we are not going to overwrite it. So this is the final precedence graph which we got. So we can see that there is a loop or there is a cycle which is present, as if I'm going to from towards T2 from T1, I can go T1 to T2 and then I can come back to my initial state. Okay, or if I'm traversing from this path, I want to come to this is my initial state, T1 to T3. Okay, so but it doesn't have any path, but there is one loop which is present at this area. So if any one loop or cycle is present in our precedence graph, then we can say that this is not a conflict serializable, because we discussed in our earlier class, we saw that if there is a loop or cycle which is not present, that means if no loop or no cycle present, then we can say that, only then we can say that this is a conflict serializable. So now there is a loop which is present already here, so there will be a loop and cycle. So this loop and cycle will tell us that this is not a conflict serializable. So if this is not a conflict serializable, then we can say that this is not serializable. No, we cannot say that. So how this will be answered? अगर हमारा जो condition है, if this is not satisfying our conflict serializable condition, then हम ये नहीं बोल सकते कि that is not serializable, because हमारे पास एक व्यू serializability है, सेकेंड कॉन्सेप्ट है serializability का, which gives us the answer कि ये सीरियलाइजेबल है या नहीं है. अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, देन वी विल गो परस्यू टुवर्ड्स आवर सेकेंड टाइप, दैट इज़ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. तो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारे पास शेड्यूल था जिसमें हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन्स थी. हमने जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, अगर हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स किसी और ट्रांजेक्शन में प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया था, उसका एक प्रेसिडेंस उसके अकॉर्डिंगली एक हमने डायरेक्टेड एज क्रिएट कर दिया था. फिर हमारे पास एक प्रेसिडेंस ग्राफ इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया. फिर हमने उसमें चेक किया कि अगर हमारे पास कोई लूप या साइकिल प्रेजेंट है, तो हम उसको बोल देंगे कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की एग्जांपल नहीं है. अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, तो वो दैट मीन्स कि सीरियलाइजेबल नहीं होगा, हो सकता है. ये हम कैसे चेक करेंगे, ये हम व्यू सीरियलाइजेबिलिटी से चेक करेंगे. ठीक है. सो अगर हम ये देखिए, अब नीचे ये थोड़ा, you can see that we have this transaction which we were discussing. This I have exactly the same copy of it down there. Okay, so I have T1, T2, T3. This is a schedule S which has 3 transactions, T1, T2 and T3. Okay, so these are the operations which were executing. Okay, so earlier I have a value named of variable A as 100. So it is given that variable A has a value of 100. मतलब हमारे पास A की वैल्यू 100 गिवन है. तो अभी उसने सबसे पहले हमारे सिस्टम ने क्या किया, उसको रीड कर लिया. यहाँ पे वैल्यू रीड होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 100. ठीक है. देन उसके बाद क्या है, टाइम स्टैम्प में यहाँ तो क्या हुआ, अभी हमारे पास सेकेंड टाइम, इस टाइम स्टैम्प में क्या है कि यहाँ पे हमारा राइट एक ऑपरेशन है. यहाँ पे जो वैल्यू रीड हुई थी, यहाँ पे वैल्यू क्या रीड हुई थी, 100. ठीक है. सो वी हैव एन ऑपरेशन कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कर रहा था a इज इक्वल टू a-40 ऑपरेशन कर रहा था. ठीक है. तो अभी हमारे पास वैल्यू क्या थी, 100 माइनस 40 क्या होगी हमारी वैल्यू, 60. तो अभी हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, 60. ठीक है. उसके बाद ये वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा. इट इज़ ऑल्सो डूइंग एज a इज इक्वल टू a-40. तो अभी हमारे पास वैल्यू क्या थी, 60 माइनस 40 हुआ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 40. ठीक है. तो उसके बाद हमारा ये वाला ऑपरेशन चलेगा टाइम स्टैम्प में. ठीक है. तो ये क्या ऑपरेशन कर रहा है, ये ऑपरेशन कर रहा है a इज इक्वल टू a-20. तो हमारे पास भी लास्ट वैल्यू क्या थी, 40. यहाँ पे सॉरी 60 माइनस 40 हमारे पास लास्ट वैल्यू थी 20. तो यहाँ पे क्या हो गया, 20 माइनस 20 विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ 0. ठीक है. तो हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या होगी, 0. तो ये जो राइट ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे जो है हम इसको ब्लाइंड राइट बोल देते हैं. इसको हम ब्लाइंड राइट क्यों बोलते हैं, इसको हम इसलिए ब्लाइंड राइट बोलते हैं बिकॉज इसने क्या है कि यहाँ पे इसने अपने ट्रांजेक्शन में कोई भी वैल्यू रीड नहीं की. जो पहले कहीं पे किसी ट्रांजेक्शन ने जो वैल्यू रीड की हुई थी, उसने उसी को पिक करके उसने अपना ऑपरेशन लगा के और राइट ऑपरेशन
किया और अपना जो उसने वैल्यू कंप्यूट करनी थी कर ली। इस तरह का जो राइट होता है हम उसको ब्लाइंड राइट बोलते हैं। ठीक है। सो जनरली हमारे अगर हमें कोई भी ऐसी स्टेट दी होती है तो ये एक व्यू सीरियलाइजेबल होने के चांसेस हैं। अगर हमारे पास कोई ब्लाइंड राइट है तो वी कैन से दैट दिस इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्यू सीरियलाइजेबल। ठीक है। तो इफ अगर मैं कुछ एक मेरा सीरियल ट्रांजैक्शन दी हुई है, ठीक है, ये मेरा एस था, ये मेरा एस डैश था। अभी मुझे चेक करना है इफ दिस एस एंड दिस एस डैश इज सीरियली इक्विवेलेंट और नॉट। जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में किया था उसी तरह से हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैसी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, रीड ए राइट ए राइट ए राइट ए। ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ सीरियल ट्रांजैक्शन, सीरियल शेड्यूल, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले T1 के सारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, देन T2 के, देन T3 के। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर हम इसका प्रेसिडेंस प्लॉट करें, अगर हम इस रीड ए का देखें, ठीक है, इस रीड ए का क्या होगा प्लॉटिंग अगर हम कहें इसको वैसे ही प्रेसिडेंस ग्राफ क्रिएट करेंगे कैसे होगा। इस रीड ए का कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है डब्ल्यू ए। ठीक है। तो डब्ल्यू ए प्रेजेंट है, यस, T2 में है प्रेजेंट, T3 में प्रेजेंट है। ठीक है। T2 में प्रेजेंट है, T3 में प्रेजेंट है। ठीक है। इस डब्ल्यू ए में फिर उसके बाद हम ये वाली ऑपरेशन चलाएंगे। डब्ल्यू ए में कोई और इसका कॉन्फ्लिक्ट है, ये दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है। बट ऑलरेडी हमारे पास ग्राफ लोड किया हुआ है तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है। बिकॉज हम ऑपरेट नहीं करेंगे। फिर हम इस पे आ जाएंगे, इस T2 पे। ये डब्ल्यू ए का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, येस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विच दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट फॉर दिस डब्ल्यू ए। ठीक है। सो कैन क्रिएट एन एज फ्रॉम दिस T2 टू T3। ठीक है। नाउ वी कैन सी दैट देयर इज नो लूप और देयर इज नो cycle, so we can say that because there is no loop or there is no cycle, so this can be a serializable schedule। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इसको हम इक्विवेलेंट कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास 100 में वैल्यू रीड करी, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन चला भाई ए माइनस 40 वाला। ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी 60। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 60 माइनस 40 करा। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 60 माइनस 40 करा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 20, बिकॉज ये भी वही ऑपरेशन कर रहा है a माइनस 40 का। ठीक है। ये ऑपरेशन कर रहा है a इज इक्वल टू a माइनस 20। ठीक है। तो 20 माइनस 20 की वैल्यू क्या होगी 0। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, ये भी फाइनल वैल्यू 0 राइट कर रहा है और ये भी फाइनल 0 कर रहा है। तो हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये एक हमारे पास ये जो व्यूज हैं वो सीरियलाइजेबिलिटी इक्विवेलेंट है। ठीक है। ये हम आगे फर्दर परस्यू करेंगे। ठीक है। सबसे पहले व्हाई डू वी नीड दिस व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। A non-serial schedule can leave the database in inconsistent state because there are multiple transactions which were running concurrently. That means काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स सेम टाइम पे चल रही हैं। कभी अगर एक स्केड्यूल में 10 ट्रांजेक्शन है तो कभी होल्ड T1 पे जा रहा है, कभी होल्ड T4 पे सपोज जा रहा है, T4 से T10, T10 से T2। सो दिस इज रैंडम स्विचिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। सो ये जो रैंडम स्विचिंग है तो कई बार हमारे डेटाबेस को क्या कर देते हैं अनकंसिस्टेंट स्टेट में लेके आ जाती है। ठीक है। तो बाय चेकिंग दैट अ गिवन नॉन सीरियल स्केड्यूल इज अ व्यू सीरियलाइजेबल, we can make sure that it is a consistent schedule। ठीक है। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज व्यू इक्विवेलेंट। ठीक है। तो जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट पढ़ा था वैसे ही हम अभी व्यू इक्विवेलेंट भी देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि कब दो स्केड्यूल्स इक्विवेलेंट हो सकते हैं। लाइक सी इफ यू हैव टू स्केड्यूल्स नेम्ड S1 एंड S2। ठीक है। हमारे पास दो स्केड्यूल्स हैं और हर स्केड्यूल में दो ट्रांजेक्शन है T1 T2। व्हाट आई एम सेइंग दैट आई हैव टू स्केड्यूल्स S1 एंड S2। S1 में भी मेरे पास दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2 एंड S2 में भी मेरी दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2। ठीक है। और मुझे प्रूव करना है कि ये जो दो स्केड्यूल्स हैं वो दोनों इक्विवेलेंट है। वो किस तरह से प्रूव होंगे। तो हमारे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में अगर हमें ये प्रूव करना हो तो हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं जो फॉलो होनी चाहिए। ठीक है। वो 3 कंडीशंस क्या क्या होंगी। सबसे पहली कंडीशन है इनिशियल रीड। ठीक है। दोनों जो हमारे स्केड्यूल्स हैं उनके जो इनिशियल रीड्स हैं वो सेम होने चाहिए फॉर स्पेसिफिक वेरिएबल।
अभी ये जो इनिशियल रीड है और नॉर्मल रीड से डिफरेंट है। इनिशियल रीड क्या होगा, किसी भी वेरिएबल का फर्स्ट रीड, टाइम स्टैम्प में जो फर्स्ट रीड होता है उसको हम इनिशियल रीड बोल देते हैं, ठीक है। लाइक सी, if initial read of each data item in transactions must match in both schedules. For example, if transaction T1 reads a data item X before transaction T2 in schedule S1, then in schedule S2, T1 should read X before T2. What it's saying कि अगर हमारे पास स्केड्यूल S1 है और S2 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन T1 है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन T2 है, इसमें भी ऐसी दो ट्रांजेक्शन है। अगर किसी वेरिएबल की, अगर सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल x, ठीक है, सो अगर इस स्केड्यूल में यहाँ पे सब T1 जो है सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू रीड कर रहा है, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में वेरिएबल x की वैल्यू जो है T1 में रीड हो रही है, तो इस स्केड्यूल में भी x की वैल्यू जो है T1 में ही रीड होनी चाहिए। अगर ये दोनों होगा तो हमारी इनिशियल रीड वाली जो कंडीशन है वो तभी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। देन देर इज फाइनल राइट, ठीक है। तो अभी फाइनल राइट में क्या होगा, ऑपरेशंस ऑन ईच डेटा आइटम मस्ट मैच इन बोथ schedules. For example, a data item X is last written by transaction T1 in schedule S1, then in S2 the last write operation on X should be performed by transaction T1. What it is saying कि like see, there is two schedules, it has transaction T1, it has transaction T2, T1 T2, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल x, अगर कोई भी वैल्यू अगर सपोज यहाँ पे राइट हो रही है, ठीक है, मतलब कोई वैल्यू जो फाइनल राइट जो हो रहा है, जो बिल्कुल एंड वाला राइट हो रहा है, मतलब जिसके बाद कोई भी राइट का ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, दैट विल बी द फाइनल राइट, ठीक है। अगर हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पे काफ़ी सारी ऑपरेशन शेड्यूल हुए, ठीक है, तो जो लास्ट ऑपरेशन जो हुआ राइट ऑफ एक्स का वो यहाँ पे हुआ T2 पे, तो इस शेड्यूल में भी जो लास्ट राइट होगा वो T2 में अगर हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ये जो मेरी कंडीशन है वो फाइनल राइट की जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। देन द थर्ड कंडीशन इज अपडेट रीड, ठीक है। तो अपडेट रीड क्या होगा, इन शेड्यूल S1 द ट्रांजेक्शन T1 इज रीडिंग अ डेटा आइटम अपडेटेड बाय T2, then in schedule S2 T1 should read the value after the write operation of T2 on the same data item. What it is कि see, if I have S1 and S2, T1 T2 T1 T2, ठीक है। तो अगर कोई भी, अगर यहाँ पे कुछ राइट हुआ, ठीक है, सपोज इसने यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन राइट एक्स कर दी जो कि इसके जिसके बाद उसका कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, ठीक है, जो इसका जो फाइनल जो इसने जो वैल्यू राइट करी उसके बाद इस ट्रांजेक्शन ने उसकी वैल्यू को क्या किया, रीड किया और अपने सिस्टम में क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई 100 वैल्यू थी, इस ऑपरेशन के बाद यहाँ पे वैल्यू कोई ऑपरेशन के बाद 60 होगी, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एज 100, ये क्या करेगा, जो प्रीवियस अपडेटेड वैल्यू होगी उसको रीड कर लेगा, मतलब इंस्टेड ऑफ 100 ये वैल्यू क्या रीड कर रहा है, 60, ठीक है। तो ये अब वैल्यू क्या कर रहा है, रीड 100 के बजाय कर रहा है 60, जो इसने जो लास्ट अपडेट वैल्यू करी थी उसको इसने क्या कर लिया, रीड कर लिया, ठीक है। सेम उसी तरह जिस तरह से ये प्रोसेसिंग होगी वेरिएबल के लिए, तो फाइनल इसका जो अपडेट रीड होगा वो यहाँ पे T2 ही रीड करेगा अगर, तो हम ये बोलेंगे कि इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब हम क्या बोला कि अगर हमें कोई भी दो शेड्यूल्स दिए हुए हैं S1 S2, अगर हमें उनको प्रूव करना है कि दीज टू शेड्यूल्स आर view equivalent, then it should follow the three properties or three conditions. What were its three conditions? Three condition is, first condition is initial read, that means in both of the schedules if T1 is reading the first read, then in S2 T1 should also read the same value of not same but the same operation of x should be read by T1, ठीक है। Then second was final write. What was its final write? Final write means कि अगर जो लास्ट वैल्यू जो राइट हो रही थी वो अगर T2 कर रहा था लास्ट ऑपरेशन राइट का फॉर वेरिएबल x, तो
S2 भी वही करेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाली कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। थर्ड इज अपडेट रीड, ठीक है। ये भी दो बोथ ट्रांजेक्शंस की अगर हमारी सेम होगी तो वी कैन से दैट दीज टू शेड्यूल्स आर अपडेट रीड, these two schedules are satisfying the condition of update read, ठीक है। then we are going towards view serializable। अब view serializable क्या है? if a schedule is view equivalent to its serial schedule then the given schedule is said to be view serializable। जैसे अगर हमने प्रीवियस उस क्वेश्चन में करा था कि अगर हमारा कोई भी दो शेड्यूल्स हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की कंडीशन अगर फॉलो कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट इक्वलेंट है, हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारे स्केड्यूल्स हैं ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। उसी तरह से अगर हम प्रूव कर दें कि हमारे पास दो गिवन शेड्यूल जो हैं वो इक्वलेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारी व्यू सीरियलाइजेबल की प्रॉपर्टी जो है फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम ना एक एग्जांपल करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। सो सी आई हैव टू शेड्यूल्स S1 एंड S2, ठीक है। यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये जो रैंडम फ्लक्चुएशन है टाइम स्टेप में T1 से T2, T2 से T1, T1 से देन अगेन T2, तो ये एक जो सीक्वेंस है वो हमें क्या पता, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि दिस इज अ नॉन सीरियल स्केड्यूल। बट यहाँ पे क्या है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑफ T1 हम कहाँ पे परस्यू कर रहे हैं टुवर्ड्स T2। सो वी कैन से दैट ये क्या है, एक तरह का हमारे पास सीरियल स्केड्यूल है, ठीक है। अगर मुझे प्रूव करना है कि दैट S2 इज अ सीरियल स्केड्यूल ऑफ S1, ठीक है, वो अगर हम प्रूव करना है, इफ वी कैन प्रूव दे आर व्यू इक्विवेलेंट देन वी कैन से दैट द गिवन स्केड्यूल S1 इज व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है। वो हम कैसे प्रूव करेंगे? अभी ऑपरेशन देखिए, यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन है, रीड एक्स डब्ल्यू एक्स, रीड एक्स डब्ल्यू एक्स, रीड वाई डब्ल्यू वाई, रीड वाई डब्ल्यू वाई, रीड एक्स डब्ल्यू एक्स, रीड एक्स डब्ल्यू एक्स, रीड वाई डब्ल्यू वाई, ठीक है। तो मतलब सेम ऑपरेशंस है, बट ये क्या, ये नॉन सीरियल स्केड्यूल में है, ये सीरियल स्केड्यूलिंग में है, ठीक है। अगर हमें प्रूव करना है कि दिस S1 इज व्यू सीरियलाइजेबल तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक सम प्रॉपर्टीज। व्हाट वर दीज प्रॉपर्टीज विच वी वर डिस्कस्ड अर्लियर, वो जो हमने तीन कंडीशंस अभी रीड करी थी वो अभी हम फाइनल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा इनिशियल रीड, ठीक है। First condition was initial read. So we have two schedules S1 and S2. See, in this example we have two variables, the variable X and variable Y. यहाँ पे हमारे पास दो variables हैं X और Y के लिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम दो variables के लिए initial read जो है चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम variable X के लिए चेक कर रहे हैं in schedule S1, ठीक है। Initial read of X कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। That means T1 में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने T1 लिख दिया, ठीक है। फिर हम S2 में आते हैं, इसका फर्स्ट रीड कहाँ होगा, X वेरिएबल का फर्स्ट रीड हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं वेरिएबल Y की तरफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीड Y है, रीड Y नहीं है, फिर रीड Y है, रीड Y नहीं है, रीड Y यस। फर्स्ट इनकाउंटर हो गया यहाँ पे रीड Y, वो किस में है, स्केड्यूल S1 में है और ट्रांजेक्शन 1 में है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं, does this have RY? No, RY, yes, this is RY. So it is encountered in schedule S2 in the transaction T1. So यहाँ पे हो गया। अभी चेक करो, ये दोनों सेम है, T1 मतलब दोनों सेम है, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है इनिशियल रीड वाली वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमने प्रूव कर दी कि सेटिस्फाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अभी फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी, देन विल गो टुवर्ड्स आवर सेकंड कंडीशन वाज ऑफ फाइनल राइट, ठीक है। फाइनल राइट मतलब जो हर वेरिएबल की जो लास्ट रिटर्न वैल्यू जो होगी जिस ट्रांजैक्शन में होगी वो हमारी फाइनल राइट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं वेरिएबल x, ठीक है, इसमें वेरिएबल x में क्या है, फाइनल राइट कहाँ हो रहा है, फाइनल राइट यहाँ पे हमारा फाइनल राइट हो रहा है, किस में हो रहा है, हमारी ट्रांजैक्शन T2 में हो रहा है स्केड्यूल S1 के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसका फाइनल राइट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे राइट है, इसके बाद राइट है नहीं है, इसके बाद राइट ऑफ एक्स यहाँ पे एनकाउंटर हो रहा है, किस में हो रहा है, S2 की T2 में हमारा जो राइट एक्स है वो एनकाउंटर हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख दिया,
ठीक है। फिर हम आ जाते हैं उसी तरह हम वेरिएबल वाई के लिए चेक कर रहे हैं। वेरिएबल वाई का फाइनल राइट किस में आ रहा है, T2 में, T2 में, T2 दोनों सेम है, T2 ठीक है। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो अभी हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होगी, दैट इज फाइनल राइट। ठीक है। अभी हम थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, अपडेट रीड। ठीक है, अपडेट रीड में आ जाते हैं। हमारे पास कितने थे शेड्यूल्स, 2 शेड्यूल्स है। कौन कौन से, S1 एंड S2। ठीक है, वेरिएबल क्या थे, X एंड Y। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि जो अगर यहाँ पे करो, ये था रीड एक्स के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट हुआ एक्स का। ये वाले राइट को T2 ने क्या करा, ये वाली जो अपडेटेड वैल्यू थी, अब सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू 100 से स्टार्ट करती हूँ, ऑपरेशन लगाती हूँ यहाँ पे a माइनस 40। ठीक है, a इज इक्वल टू a माइनस 40। तो 100 माइनस 40 वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 60। तो ये अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये अपडेटेड वैल्यू जो यहाँ पे रीड किसी कौन कर रहा है, T2 कर रहा है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं T2 ने क्या करा था, अपडेट रीड करा था। ठीक है, फॉर वेरिएबल एक्स। ठीक है, वेरिएबल वाई के लिए चेक करते हैं। ये जहाँ पे जो वेरिएबल डब्ल्यू वाई के लिए जो वैल्यू राइट हुई फाइनल, वो किसने रीड करी, T2 ट्रांजेक्शन ने रीड करी। ठीक है, तो यहाँ पे T2। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे चेक करते हैं, फाइनल राइट एक्स जो था वो किसे रीड किया, उसके बाद T2 ने अपडेटेड वैल्यू रीड करी। ठीक है, और y के अपडेटेड वैल्यू रीड कर ली इस ऑपरेशन से, रीड वाई से। ठीक है, तो यहाँ से T2 ठीक, ये भी सेम हो गया। तो हमने क्या चेक किया कि हमारी जो तीनों की तीनों कंडीशन थी जो वो सेटिस्फाई होगी। कौन कौन सी 3 कंडीशंस, इनिशियल रीड, सेकंड कंडीशन वाज फाइनल राइट एंड थर्ड कंडीशन इज अपडेट रीड। सो इसने क्या कहा, तीनों की तीनों जो हमारी कंडीशंस थी उसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो देन वी कैन से दैट by satisfying these 3 conditions we can say that S1 and S2 are view equivalent, and if these are view equivalent, ठीक है, then we can say that कि हमारा जो S1 है वो व्यू सीरियलाइजेबल है। व्यू सीरियलाइजेबल होने की अगर वो व्यू सीरियलाइजेबल है तो मतलब हमारी सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो अचीव होगी। अगर सीरियलाइजेबिलिटी अचीव होगी देन वी कैन से दैट हमारा जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्या प्रूव करा हमने क्या करा कि हमारे पास 2 शेड्यूल्स थे S1 एंड S2, हमने उनको व्यू सीरियलाइजेबल इक्विवेलेंट प्रूव करा। जब हमने बोला कि ये दोनों व्यू सीरियलाइजेबल है, ये हमारा एक नॉन सीरियल शेड्यूल था। ठीक है, ये हमारा एक सीरियल शेड्यूल था। ठीक है, अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा सीरियल शेड्यूल है के इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं कि ये एक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है। जो S1 है वो हमारा व्यू सीरियलाइजेबल है। अगर हमारा व्यू सीरियलाइजेबल है तो ये सीरियलाइजेबिलिटी की कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सीरियलाइजेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो डेटाबेस है वो एक कंसिस्टेंट डेटाबेस में हम उसको अचीवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड मार्क ऑफ आवर व्यू serializability. So we have studied about serializability and its 2 types, conflict serializability and view serializability. Thank you so much.